Welcome everybody. This is our second class in JEE Mains previous year questions for chapter Current Electricity of class 12th. Before in this series we have made one video and that video is available on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics and there is a dedicated playlist for these type of videos. So if you have not watched our previous video, you can go to our playlist section and watch those videos out. And we have also started similar series for NEET. So if some of your friends are preparing for the NEET, then you can suggest them our channel and that playlist also. And if you find these videos useful, then do press the like button, share them and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your donations, we will be able to keep on making these videos on regular basis. Now with this, let's start today's video. And in previous video we have covered up to question number 12, I think. Yes, this was the question 12th which we covered, and today we are going to start with question number 13. So let's start with 13. So carbon resistance has a following color code. What is the value of resistance? So it is a comparatively easy one. We know that for green we have 5, for orange we have 3, and for yellow we have 4. So into 10 raised to power 4. So it will be 530 kilo ohm, and we have golden means we have plus minus 5% tolerance. So it will be 530 kilo ohm plus minus 0.5, and that is option A will be the right answer. Next question. A heating element has a resistance of 100 ohm at room temperature. When it connected to supply of 220 volts at a steady rate, current 2 ampere passes, its temperature is 500 degrees Celsius more than room temperature. What is the temperature coefficient of resistance of heating element? So हमें यहाँ पे temperature coefficient बताना है. So जो हमारा temperature coefficient होता है वो उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है. जो रिलेशन होता है दैट इज गिवन बाय लाइक दिस, दैट चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नोड अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, और जो आर नोड है वो हमारा यहाँ पे ओरिजिनल रेजिस्टेंस है. सो जो आर नोड है, आर नोड की वैल्यू हमारे पास 100 ओम गिवन है. So R node is 100 ohm given, and statement यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक करके बनाया गया है, that temperature is 500 more than room temperature. Means 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर नहीं है. एक्चुअली जो टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ है वो 500 डिग्री सेल्सियस है. मीन्स जो डेल्टा टी है हमारे पास दैट इज 500. नाउ हमें जस्ट यहाँ पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है. सो चेंज इन रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें गिवन है दैट सप्लाई है जो 220 वोल्ट्स की है और उस टाइम पे करंट 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास. V 220 वोल्ट है, I 2 एम्पियर है इनटू R. सो फ्रॉम दिस जो R आता है हमारे पास 110 ओम आता है. मींस जब आपका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया है तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस है, वो 110 है, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस 100 था, तो डेल्टा आर हो गया हमारे पास 10. 110 माइनस 100, सो 10 इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस 100 टाइम्स अल्फा टाइम्स डेल्टा टी. वी कैन कट, सो अल्फा विल बी 1 by 5000 और 0.2 into 10 raised power minus 3 और 2 into 10 raised power minus 4, जो कि हमारा ऑप्शन सी के साथ मैच करता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Copper rod of cross-section area A carries uniform current I through it at temperature T. If volume charge density of the rod is rho, how long
विल चार्जेस टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, एरिया गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो हमें चार्जेस के लिए बताना है कि कितना टाइम लगेगा। नाउ बिकॉज यहाँ पे टाइम मेंशन है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट याद आ सकता है, दैट इफ वी समहाउ फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड देयर इज सम अनदर वे, अदर वे से भी हम इसको किया जा सकता है, दैट एज इट इज मेंशन दैट जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रोड की, वो रो है, सो रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम होगी यहाँ पे एरिया इनटू लेंथ ऑफ द रोड। सो फ्रॉम दिस जो हमारे पास चार्ज आ जाता है, चार्ज इज इक्वल टू ए डी रो, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है। एंड वी नो करंट के रिस्पेक्ट में दैट करंट इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। सो फ्रॉम दिस वी नो टाइम विल बी charge by current, so A D rho by I, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे रो डी ए बाय आई। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एंड इफ अगर आप इस मेथड से सोल्व करना चाहते हैं कि जहां पे आप टाइम को डिस्टेंस बाय टर्म जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इससे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां पे एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसको जो स्मॉल एन है हमारे पास, तो इसको हम स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे, दैट आई इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय वी, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय ई है साथ में एरिया है और साथ में वी डी है। नाउ एन टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर है, और ई उनका चार्ज है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर देगा हमें टोटल चार्ज। सो आई विल बी क्यू बाय वी इंटू ए बाय वी डी, और ये है चार्ज बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो। सो फ्रॉम दिस I is equal to rho A VD, and from this जो हमारे पास VD हो जाएगा, VD will be I by rho A। Now time as हमने already mention है, time is distance by VD, so time will be distance D by I as it is, और rho A ऊपर चला जाएगा हमारा। सो ये अगेन रो डी ए बाय आई, सेम हम ऑप्शन पे सेम आंसर पे पहुंचते हैं। सो वी कैन डू इन बोथ ऑफ दिस वेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R हैज a resistance 100 ohm. It recast into wire of radius R by 2. Resistance of the new wire will be, तो हमें न्यू वायर का रेजिस्टेंस बताना है, और यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, हम रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, दैट जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, आप अगर उसकी शेप में चेंज करते हो तो वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। सो 100 ओम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाय A, एंड एज पर मेंशन रेजिस्टेंस हमारा 100 है, रेजिस्टिविटी एज इट इज रहेगी, लेंथ सपोज कीजिए L है और उसकी रेडियस R है, सो पाई R स्क्वायर। सो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड पार्ट में क्या किया जाता है कि जो वायर है उसको रिकास्ट किया जाता है और रेडियस को R बाय 2 कर दिया जाता है। नाउ बिकॉज मटेरियल की वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है, वी विल रिमेन कांस्टेंट, तो पहले लेंथ L थी, रेडियस R थी। अब जो वायर होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है नॉर्मली, सो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी पाई R स्क्वायर, और जो उसकी लेंथ है इनिशियल दैट इज L, और न्यू सिनेरियो में, सेकंड सिनेरियो में जब रेडियस R बाय 2 हो जाती है, सो इट कम्स R बाय 2 स्क्वायर, और सपोज जो न्यू लेंथ है दैट इज R डैश। सो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, and we will be left with R square L is equal to R square by 4 into L dash, R square cancelled and L dash is equal to 4L। ये हमारा न्यू रिलेशन आ जाता है।
सो हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो आर डैश इज इक्वल टू रो, बिकॉज मटेरियल की प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगी. एल डैश आएगा, एल डैश की वैल्यू है 4L और डिवाइड में आएगा पाई, जो न्यू रेडियस है R/2 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 4 रो L बाय पाई R स्क्वायर, और साथ में 4 ऊपर चला जाएगा. सो दिस विल बी 16 टाइम्स रो L बाय पाई R स्क्वायर, और जो रो L बाय पाई R स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास 100 है. सो इट विल बी 16 इंटू 100, 1600 ओम, जो कि हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. When a 5 volt potential difference is applied across a wire of a length 0.1 meter, ड्रिफ्ट स्पीड हमें गिवन है, यानी कि Vd गिवन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, यानी कि N की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू, हमें तो रेजिस्टिविटी बतानी है. सो अगेन वी नो दैट I इज इक्वल टू होता है NE/AVD. सो इस सिनेरियो में जो हमें वैल्यूज गिवन है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. सो हमें पोटेंशियल गिवन है 5 वोल्ट्स और लेंथ गिवन है हमें 0.1 मीटर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻�4 एंड N की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 8 इंटू 10⁻28. सो इस फॉर्मूला में हमें वी नो N, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमें पता ही होती है, और हमें Vd पता है, बट यहाँ पे हमें I नहीं पता और साथ ही हमें एरिया भी नहीं पता, और हमें यहाँ पे निकालनी है रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टेंस के लिए बेसिक रिलेशन होता है दैट रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ इंटू एरिया, और यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, रेजिस्टेंस के लिए एक अनदर फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू IR, एंड फ्रॉम दिस R इज इक्वल टू V बाय I. सो यहाँ पे R की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं. सो इट विल बी V बाय I इज इक्वल टू रो L बाय A, एंड फ्रॉम दिस जो रो की वैल्यू आएगी, रो विल बी V इंटू A डिवाइडेड बाय IL. सो VA I की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, सो इट विल बी NE/AVD, और साथ में L है हमारे पास. एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विद, एंड ये Vd है, स्मॉल Vd है. सो वी विल बी लेफ्ट विद पोटेंशियल NE/VD इंटू L. ये पोटेंशियल है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये सभी वैल्यूज हमें नॉन है. पोटेंशियल इज 5, जो N है, N की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻28. इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड जो Vd है, Vd इज गिवन टू बी 2.5 इंटू 10⁻⁻4, एंड L इज 0.1. सो इस वैल्यू इनको हम यूज करते हैं. अगर हम 10 रेज टू पावर्स को एडजस्ट करें, 10 रेज की पावर्स को, तो 28 है, ये -19 है, तो यहाँ से बचता है -9, ओ सॉरी +9 बचेगा. 28 - 19 +9, +9 में से 4 गया तो माइनस, फिर से 5 बचेगा, और ये 10 रेज टू पावर -1 है, तो यहाँ से 4 बचेगा. तो 10 रेज टू पावर 4 नेगेटिव में, पॉजिटिव में बचेगा डिनोमिनेटर में. सो 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1.6 इंटू 2.5, और साथ में बचता है 10 रेज टू पावर हमारे पास, अगेन ये 23, ये 24, तो 4 बचता है प्लस में. नाउ 2.5 से 5 को 2 पे कट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा फिर 4 पे जाएगा. सो इट विल बी 1/6.4, 16 इंटू 4 6.4, साथ में डेसिमल भी है, और ये पावर आ जाएगी 10 रेज टू पावर -4. एंड लेट्स सी कि किससे मैच होता है अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेशंस करें. सो इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू में लेने वाली है, जो इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखते हैं, इट विल बी
0.156 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻5, जो कि ऑप्शन बी के साथ यहां पे मैच करेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So suppose the drift velocity of a material varied with the applied speed e as, तो ये वेरिएशन गिवन है, तो हमें v वर्सेस i ग्राफ बताना है मटेरियल के लिए जो कि बेस्ट सूटेबल हो। सो अगेन लेट्स हम इसको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। एंड ये गिवन है दैट वी डी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ई, और हमें ये पता है दैट आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से आई इज, बाकी अगर बाकी की सभी चीजें कांस्टेंट रहे, एक सिंगल वायर ही लें तो उसके लिए एन और ई कांस्टेंट रहेगा, उसका एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। सो जो करंट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, एंड फ्रॉम दिस जो करंट होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ई के। फ्रॉम दिस वी कैन से जो आई स्क्वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नाउ बिकॉज यहाँ पे एक वायर की बात हो रही है, एक अगर हम सिंगल वायर की बात करें फॉर दिस टाइप ऑफ वायर्स, और ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एंड वी नो फॉर कंडक्टर्स वी कैन राइट दैट v इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस वी डी, और ये माइनस साइन जस्ट पोटेंशियल वाइज वेरिएशन के लिए होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं तो हम इजीली बोल सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल होता है V के। सो E अगर V के प्रोपोर्शनल है और E I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वी कैन से I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू V, और हमारे पास यहाँ पे किसका ग्राफ है, V वर्सेस I का ग्राफ है। तो अगर हम ये ग्राफ बना रहे होते तो V अगर ऐसे लेते और यहाँ पे अगर I स्क्वायर लेते तो ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता, बट बिकॉज I लिया जा रहा है तो ये हमारे पास ऐसे एक्सपोनेंशियल राइज ग्राफ आएगा, जो कि ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो करेक्ट सेटअप टू वेरीफाई ओम्स लॉ, तो हमें ये बताना है कि कौन सा सेटअप यहाँ पे ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए करेक्ट है। सो टू वेरीफाई अगेन ओम्स लॉ, ये क्वेश्चन शायद 2020 में भी आया था कि आपको पता है कि जो पोटेंशियोमीटर है आपका, वोल्ट मीटर है, वो किस में होना चाहिए, वो पैरेलल में होना चाहिए, और जो एमीटर है वो सीरीज में होना चाहिए। तो यहाँ पे एमीटर सीरीज में है, यहाँ पे पैरेलल में है। यहाँ पे देखते हैं तो वोल्ट मीटर सीरीज में लगा हुआ है तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे भी वोल्ट मीटर आपका सीरीज में लगा हुआ है तो ये भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में है एंड रेजिस्टेंस के साथ जो एमीटर है वो सीरीज में है। नाउ कमिंग टू कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नाउ अगर हम दोनों डायग्राम देखते हैं जो हमारे ए और बी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बी है, बी पे ध्यान दें अगर, तो जो हम पोटेंशियल है दोनों डायग्राम्स में ए एंड बी बोथ में, पोटेंशियल हम किसके मेजर अक्रॉस कर रहे हैं, जो ये हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है, जो फिक्स रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं। सो बिकॉज हम यहाँ पे ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं तो हमें करंट भी इसके अलोंग ही मेजर करना चाहिए कि इससे जो करंट है वो कितना पास होता है, वो हमें यहाँ पे करंट मेजर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू डायग्राम ए, जो डायग्राम ए है इसके अंदर हम टोटल करंट मेजर कर रहे हैं, बिकॉज जो ये एमीटर है वो फाइनली टोटल सर्किट के साथ लगा हुआ है कि इससे हम इस एमीटर से हम टोटल करंट मेजर कर रहे हैं सर्किट का। और अगर हम बी में देखें तो बी से हम जो करंट मेजर कर रहे हैं वो हम ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इससे पास होने वाला करंट मेजर कर रहे हैं। सो जो मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए वो ये वाला होगा, बिकॉज अगर आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है तो आपको सेम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट एंड पोटेंशियल को मेजर करना होता है। ऑप्शन बी में हम पोटेंशियल अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं और करंट अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं। ऑप्शन ए में हम पोटेंशियल फिक्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं बट करंट पूरे सर्किट का मेजर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जब इसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगी, करंट के अंदर चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। अगर इसका मोर एक्यूरेट, इससे भी ज्यादा एक्यूरेट अगर डायग्राम होना चाहिए था तो जो मोर एक्यूरेट डायग्राम शुड बी लाइक दिस, कि
ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एमीटर होता और इसके साथ ये फिक्स रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर होना चाहिए था। सो मोर एक्यूरेट डायग्राम शुड बी लाइक दिस, और साथ में यहाँ पे जो हमारा ये बैटरी कनेक्टेड है। सो प्रॉपर डायग्राम शुड बी लाइक दिस, बट यहाँ पे जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बिकॉज बी में आप वेरिएबल के अक्रॉस रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो और पोटेंशियल दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर कर रहे हो, सो ऐसा वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, resistance of a wire is R. It is bent at the middle by 180 degree and the both ends are twisted together to make a shorter wire. The resistance of the new wire is, so ये बताना है कि resistance of new wire will be, नई वायर का resistance यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। So as per mention कि जो हमारी ओरिजिनल वायर था उसका रेजिस्टेंस था R. So ये हमारी ओरिजिनल वायर थी सपोज, और इसका रेजिस्टेंस R गिवन था, तो हमने इसको बेंड कर दिया 2 पीसीज में और ऐसे कनेक्ट कर दिया दोनों को एक साथ, और ये हमारी नई शॉर्टर वायर बन गई। नाउ बिकॉज हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर मटेरियल चेंज नहीं होता और एरिया चेंज नहीं होता तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो सपोज कीजिए इसी वायर को मैं 2 पीसीज में तोड़ देता हूं, तो अगर दोनों पीसीस का कंबाइंड रेजिस्टेंस R था तो पहले वाले पीस का जो पहला वाला पार्ट होगा उसका रेजिस्टेंस R/2 होगा, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसका रेजिस्टेंस भी R/2 होगा। नाउ अगर आप दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, अब हम इनको रेजिस्टेंस से शो करते हैं कि पहले वाले का रेजिस्टेंस R/2 है और दूसरे वाले का भी R/2 है, और अगर आप इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है दैट विल बिकम R/4। सो ऑप्शन C will be the right answer। and there is another shortcut कि अगर आप लेंथ जो आपकी वायर है उसके अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को फिक्स रखें, मींस वायर के अंदर कोई मटेरियल है, वो मटेरियल का अमाउंट या वॉल्यूम को आप चेंज ना करें और उसके बाद उसकी लेंथ को एक्सटेंड करें, तो इन दैट सिनेरियो n स्क्वायर टाइम्स r जो है वो रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पे n क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ओल्ड लेंथ टू न्यू लेंथ। अगर आपकी ओल्ड लेंथ L है और न्यू लेंथ 2L हो जाती है तो रेशियो आ जाएगा 2, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R। नाउ इस सिनेरियो में आपका रेजिस्टेंस आपकी ओल्ड लेंथ थी L और न्यू लेंथ है L/2, तो दोनों का रेशियो आएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए 1/4 आता है टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, सो दिस विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस R/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If wire is stretched by making it 0.1% longer, its resistance will be, तो रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। अगेन वायर की लेंथ में इंक्रीज हुआ है तो बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा बिकॉज रेडियस कम हो जाएगी, एंड बिकॉज जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरर एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। सो R इज इक्वल टू रो L/A, एंड फ्रॉम दिस यहाँ पे डेल्टा R/R शुड बी इक्वल टू, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कभी चेंज नहीं होता, ओनली यहाँ पे लेंथ और एरिया की वजह से चेंजेस आएंगे। सो डेल्टा L/L प्लस डेल्टा A/A। नाउ बिकॉज अगेन वॉल्यूम है जो वायर की वो फिक्स रहने वाली है, सो पाई R² इंटू L, बिकॉज जो वायर है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है तो इसकी वॉल्यूम बनेगी पाई R² L, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। And from this pi R² is equal to area, so area into L is constant, और इसका भी अगर एरर एनालिसिस कर दें, सो डेल्टा A/A प्लस डेल्टा L/L इज इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम दिस डेल्टा L/L इज इक्वल टू डेल्टा A/A, और यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेना, वाई, बिकॉज हम एरर एनालिसिस कर रहे हैं और एरर एनालिसिस में सभी एरर्स को ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है बिकॉज हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करना होता है। सो डेल्टा L/L प्लस डेल्टा A/A की वैल्यू भी डेल्टा L/L है। सो चेंज इन रेजिस्टेंस इज ट्वाइस द चेंज इन लेंथ, और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें, सो मल्टीप्लाई 100, सो दिस विल बी
percentage change in length, that is 0.1. So percentage change in resistance is 0.2%, and resistance increase होगा because length को increase किया गया है. So option A will be the right answer. आगे बढ़ते हैं. So consider a block conducting material of resistivity rho shown in the figure. Current I enters at A. करंट I यहां से एंटर करता है एंड लीव्स फ्रॉम D. D से लीव करता है, D से बाहर जाता है. We apply superposition principle to find voltage delta V developed between point B and C. Calculation and done the following way. Take current entering from the I and assume it to spread over the hemispherical surface of the block. अब hemispherical surface क्या होगा कि जो आपका करंट है वो कुछ इस पॉइंट से ऐसे स्प्रेड हो रहा है. 3D में स्प्रेड होगा, तो अगर हम आपको 3D में दिखाएं तो करंट का स्प्रेड कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा. सो जो करंट का स्प्रेड है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा और जो पॉइंट ए है वो यहां पे होगा. सो दिस इज पॉइंट ए. करंट उससे हर डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड करेगा और ऊपर की तरफ स्प्रेड नहीं कर सकता बिकॉज मटेरियल ऊपर की तरफ नहीं है. सो ओनली इस ए पॉइंट से नीचे की तरफ मटेरियल है, तो दैट्स वाई जो करंट का स्प्रेड है वो ऐसे हेमिस्फेरिकल होगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट द फील्ड एट डिस्टेंस r from A assuming Ohm's law and E is equal to rho J, where J is the current per unit area. From the R dependence of E find the potential, and फिर हमें ये सब कुछ रिपीट करना है 1 2 3 for the current leaving D and superimpose the result for A and D. तो हमें ये बताना है कि डेल्टा V यानी कि B और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं एंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. नाउ एज पर मेंशन कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, हमें इस रिलेशन का यूज करना है दैट E इज इक्वल टू रो टाइम्स J, और जहां पे J क्या है, करंट पर यूनिट एरिया. तो सपोज कीजिए कि जो हमारा करंट है यहाँ पे एज पर मेंशन कि स्फेरिकली स्प्रेड हो रहा है सारा का सारा करंट, तो वो कितने एरिया में स्प्रेड होगा, वो इस हेमिस्फेयर का जो ये सर्कुलर एरिया है इस सर्कुलर एरिया में स्प्रेड होगा, लोअर वाले में, बिकॉज मेंशन है कि जो करंट है वो हेमिस्फेरिकली स्प्रेड करता है. तो जो यहाँ पे करंट J की वैल्यू हो जाएगी E विल बी रो इंटू आई बाय 2 पाई r स्क्वायर. सो ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है. और अब यहाँ से हमें पोटेंशियल बनाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए हमारे पास रिलेशन होता है ऑलरेडी अवेलेबल. इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं. सिलेक्शन टूल, हियर इट इज. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हमारे पास रिलेशन होता है दैट E is equal to minus dV by dr, and from this dV is equal to minus E dot dr. तो यहाँ पे जो dV है वो एक्चुअली आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, और हमें यही फाइंड आउट करना है कि B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. सो dV, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है B से C का. सो इट मीन्स हमें VBC निकालना है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा VB माइनस VC. सो जो यहाँ पे लिमिट्स आएंगी, यहाँ पे लोअर पॉइंट में C आएगा और अपर पॉइंट में B आएगा. E की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, नेगेटिव साइन एज इट इज, रो I बाय 2 पाई और साथ में 1 बाय r स्क्वायर इंटू dr. सो नाउ C पॉइंट के लिए R की वैल्यू यानी कि A पॉइंट से डिस्टेंस की वैल्यू, C पॉइंट के लिए A पॉइंट से डिस्टेंस होगा दैट विल बी A प्लस B, और B पॉइंट के लिए A पॉइंट से डिस्टेंस होगा स्मॉल a. सो स्मॉल a. सो फ्रॉम दिस माइनस रो I बाय 2 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा एज इट इज. 1 बाय r स्क्वायर dr का इंटीग्रल होगा नेगेटिव 1 बाय r,
और यहाँ पे लिमिट्स हो जाएंगी a प्लस बी से a, नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सो VBC इज इक्वल टू रो I बाय 2 पाई अपर लिमिट 1 बाय a एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे नेगेटिव के साथ 1 बाय a प्लस बी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, रो I बाय 2 पाई a माइनस रो I बाय 2 पाई a प्लस b। सो जो ऑप्शन C है हमारा, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर हमने यहाँ पे एरिया 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, 3 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया, कि जो ये वाला एरिया था हेमिस्फेयर का अपर एरिया, इसको क्यों नहीं काउंट किया गया। सो द रीजन इज कि यहाँ पे ये बोला गया कि करंट आपका स्प्रेड हुआ है और वो हेमिस्फेरिकली स्प्रेड हुआ है, तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में उसके पास स्प्रेड होने का कोई वो नहीं था, मौका नहीं था, वो ओनली डाउनवर्ड स्प्रेड हुआ है। सो दैट्स वाई जो हमें हेमिस्फेयर का सर्कुलर एरिया है उसी से हमें करंट को लेना है। एंड बिकॉज आल्सो अगर हम आपको इसको थोड़ा सा 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाएं हेमिस्फेयर बना के, कि जब आपका करंट यहां से आउटवर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, सपोज कीजिए दिस इज द पॉइंट, जो ए पॉइंट है, जब यहां से करंट आउटवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करेगा, लेट मी वंस अगेन, यस ओके, सो वो करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा हर डायरेक्शन में, ऐसे यहां से बाहर आएगा, ऐसे यहां से बाहर आ रहा होगा, ऐसे यहां से बाहर आ रहा होगा, और ऐसे इन एरिया से बाहर आ रहा होगा। तो जिस एरिया से वो आउटवर्ड मूव करेगा वो एरिया कौन सा होगा, वो एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया है, ना कि ये प्लेनर एरिया, बिकॉज वो करंट ऊपर नहीं जा रहा, बिकॉज ऊपर कोई मटेरियल है ही नहीं उसको ऊपर की तरफ जाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया लेंगे, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, सेम क्वेश्चन है ये, उसका आई थिंक इट इज सेकंड पार्ट। तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जस्ट यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट की है, एंड इट इज गिवन बाय रो आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर। सो रो आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर, अगेन ऑप्शन सी is the right answer. Next question. Resistance of a wire is 5 ohm at 50 degrees Celsius and 6 ohm at 100 degrees Celsius. Resistance of the wire at 0 degrees Celsius will be. So जब भी आपके पास ऐसे चेंजेस वाले क्वेश्चन आए जहां पे आपको चेंजेस और अल्फाज मेजर करने होते हैं, सो नॉर्मली जो 0 डिग्री का रेजिस्टेंस है या लेंथ है उनको ही एक्चुअल लेंथ माना जाता है। सो यहाँ पे आप इसको 5 ओम है, इसको आर नोड मान के नहीं कैलकुलेशन करने वाले, आप 0 डिग्री के रेजिस्टेंस को आर नोड मान के कैलकुलेशन करोगे। तो सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस था दैट इज आर नोड। सो जो अभी हमारा 6 हो जाएगा, सॉरी 5 ओम होगा, 5 यानी और 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 5 ओम, दैट पहले यही राइट कर लेते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 6 ओम। सो वी नो दैट R इज इक्वल टू आर नोड इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो 5 के लिए सिमिलर लिख सकते हैं, दैट 5 इज इक्वल टू आर नोड टाइम्स 1 प्लस अल्फा, और 0 एंड 50 के बीच का टेम्परेचर चेंज 50 होगा। एंड सिमिलरली 6 के लिए लिख सकते हैं दैट 6 इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा इंटू 60। नाउ व्हाट वी कैन डू, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां से 5 बाय 6 कम्स आउट टू बी 1 प्लस 50 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 60 अल्फा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस, 5 इज 1 इंटू 5 5 प्लस 300 अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 300 अल्फा, आई थिंक सो थिंक मिस्टेक है कहीं पे,
एंड हेयर इट इज। इसके लिए टेम्परेचर का चेंज 100 डिग्री सेल्सियस था, जो कि हमने बाय गलती से 60 लिख दिया। सो ये 100 आएगा एंड ये 100 आएगा और ये हो जाएगा 5 इंटू 500। सो ये इधर आके 200 अल्फा देगा और ये उधर जाके 1 देगा और अल्फा इज इक्वल टू 1/200। सो अब इनमें से किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे। 5 वाले में पुट करते हैं। दैट 5 इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1/200 है इंटू 50। सो ये देता है 1/4। 1 प्लस 1/4 इज 5/4। सो आर नोड इंटू 5/4। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एंड आर नोड की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4 ओम। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मटीरियल बी हैज ट्वाइस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए। एक circular wire is made of B has twice the diameter of the wire made of A. Then the two wires have the same resistance. Ratio of length LB and LA of their respective lengths must be। तो दोनों की लेंथ का रेशियो हमें बताना है और जो B का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मीनिंग रेजिस्टिविटी होता है, तो B का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस A का डबल है। सो वी कैन से रो ऑफ B इज डबल ऑफ रो ऑफ ए। और जो रो ऑफ ए है इसको हम क्या मान लेते हैं, रो मान लेते हैं। सो इन शॉर्ट रो ऑफ बी विल बी 2 रो एंड रो ऑफ ए विल बी ओनली रो। जो बी है उसका डायमीटर ए का ट्वाइस है। सो डायमीटर ऑफ बी इज अगेन ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ए। तो यहां से जो रेडियस है वो भी डबल हो जाती है। तो बी की जो रेडियस है वो भी ए का डबल होगी। और अगेन क्या करते हैं, फिर से ए की रेडियस को अगर आर मान लिया जाए तो बी की रेडियस हमारे पास हो जाएगी 2r। और फाइनली इनका रेजिस्टेंस सेम है। अगर रेजिस्टेंस सेम है मींस आर बी इज इक्वल टू आर ए एंड इट मींस रो बी लेंथ बी इंटू एरिया ऑफ बी दैट इज पाई आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू रो ए लेंथ ऑफ ए रेडियस ऑफ आर ए स्क्वायर। ये हमारे पास है यहाँ पे और वैल्यूज को हम पुट करते हैं। रो बी की वैल्यू है हमारे पास 2 रो, लेंथ ऑफ बी एज इट इज, पाई से पाई ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। ओ सॉरी वेट, हम यहाँ पे पाई लिखना ही भूल गए। सो यहाँ पे पाई आएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर बी का स्क्वायर आ जाएगा 4r का स्क्वायर। रो ऑफ ए इज रो, लेंथ ए एज इट इज, और आर ए का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रो से रो कैंसिल हो जाता है और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है। सो फ्रॉम दिस एल ए बाय एल बी विल बी हाफ। सो एल ए बाय एल बी इज इक्वल टू हाफ और हमें एल बी बाय एल ए निकालना है तो दैट विल बी 2। ऑप्शन डी विल बी द right answer. Next question. So an electric current is passed through a circuit containing two wires of same material connected in parallel. If the lengths and radii are in the ratio, then the ratio of the current passing through the wires will be। तो ये बताना है कि दोनों वायर्स के थ्रू कितना कितना करंट पास होगा और उनकी रेडियस और उनकी लेंथ का हमें रेशियो गिवन है और मटेरियल सेम है दोनों के लिए। अगर दोनों के लिए मटेरियल सेम है दैट इट मींस कि दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम ही होने वाली है, यानी कि रो की वैल्यू दोनों के लिए सेम होने वाली है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं। सो सपोज पहली वाली वायर ए है और दूसरी वाली बी है। सो आर ए बाय आर बी विल बी रो ए, दोनों के लिए रो तो सेम होने वाला है, एल ए बाय जो एरिया होगा दैट इज पाई आर ए स्क्वायर डिवाइड बाय रो एल बी पाई आर बी स्क्वायर। सो रो से रो कैंसिल होता है, पाई से पाई कैंसिल होता है और ये हमारे पास बच जाता है एल ए बाय एल बी इंटू आर बी बाय आर ए का स्क्वायर। सो जो लेंथ का रेशियो है दैट इज 4/3
और जो रेडियस का रेशियो है दैट इज 2/3 और 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड एक्चुअली ये हमारे पास RB/RA का स्क्वायर है और ये जो ये लेंथ का रेशियो है दैट इज LA/LB 4/3 गिवन है और RA/RB 2/3 गिवन है। तो हमें RB/RA करना है और उसका स्क्वायर यानी कि 9/4 9/4 4 से 4 कैंसल, यहाँ से 3। सो जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका रेशियो हमारे पास 3 हो जाता है, यानी कि अगर आप ये मानते हैं कि B का रेजिस्टेंस R है तो A का रेजिस्टेंस क्या होगा 3R होगा। सो नाउ सपोज कीजिए अब हम दोनों को प्लॉट कर लेते हैं कि ये हमारा है RA जिसका रेजिस्टेंस है 3R और ये है हमारा RB जिसका रेजिस्टेंस है R। यहां से टोटल करंट I पास होता है और यहां से जाता है IA पहले वाले रेजिस्टेंस के थ्रू और यहां से जाता है IB दूसरे वाले रेजिस्टेंस के थ्रू। तो जो IA होगा उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है तो जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लीजिए। सो यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस R है, सो R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस 3R दैट इज 4R इनटू ओरिजिनल करंट। सो दिस विल गिव अस I/4 और जो IB है उसके लिए भी ऐसा किया जा सकता है। IB के लिए जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज जो उसका सामने वाला रेजिस्टेंस है पैरेलल दैट इज 3R and divided by total resistance 3R plus R that is 4R into I, R से R cancel again और 3/4 of I। अब हमें दोनों के करंट्स का रेशियो निकालना है। सो दोनों के करंट्स का रेशियो विल बी IA/IB इक्वल्स टू I/4 डिवाइडेड बाय 3I/4। सो 4 से 4 कैंसिल होता है, I से I कैंसिल होता है और हमारे पास बचता है 1/3 जो कि ऑप्शन B है। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली अगेन अगर आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगेन आपके कुछ डाउट्स हैं सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशन बाय स्कैनिंग दिस QR कोड्स। इससे हमें सीरीज को ऑन टाइम रखने में एंड रेगुलर वीडियोस बनाने में मदद मिलती है। So with this again, thanks for watching and we will meet in next video.